students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is the one with artificial intelligence. Artificial intelligence जिसे हम AI भी कहते हैं, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा. तो चलिए आज पढ़ लेते हैं कि ये artificial intelligence क्या चीज़ है. Things to learn, natural and artificial things, intelligence, artificial intelligence devices. Robo, hello Adi and Adia, I bought a dog for you. Adi and Adia, wow, is it real? Robo, no, it is artificial. Artificial means that is made by humans. When we look around ourselves, we find two types of things, natural things and artificial things. Let us learn about them. तो जब भी हम अपने आसपास देखते हैं, आपने भी देखा होगा अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में भी ये चीज़ें दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं जो हमें नेचर से मिली है, जैसे कि ट्रीज़ हो गए, बर्ड्स हो गए, वाटर हो गया, हवा हो गई, और कुछ चीज़ें मैन मेड होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं. ठीक है, तो ये इनको आर्टिफिशियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें इंसान ने बनाया है. Natural things, we see many things around us. Many of these things are gifted by nature. These are called natural things. Example of natural things are trees, animals, flowers, sun, moon, stars, etc. तो ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं क्योंकि हमें नेचर से मिली है. आर्टिफिशियल थिंग्स क्या होती हैं फिर? Many things around us are made by man. These are called artificial or man-made things. Some artificial things are book, fridge, computer, table, bus, etc. तो ये सारी की सारी artificial things हैं क्योंकि इन्हें man ने बनाया है. Now, what is intelligence? Intelligence is the ability to learn or understand from experience and to deal with new situations. When a computer or a robot solves a problem, it may seem to be intelligent. Intelligence बच्चों हमारे सोचने समझने की क्या होती है? एक एबिलिटी होती है. अगर कोई भी कंप्यूटर या कोई भी रोबोट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो वो भी इंटेलिजेंट कैटेगरी में ही माना जाता है. You become intelligent when you start doing correct things by yourself. Let us understand it with the help of an example. All of you must be familiar with Tarzan, the jungle boy, right? Do you remember that since he grew up in a forest, he was unable to speak English? आप सब ने टार्जन के बारे में तो पढ़ा ही होगा या आपने मूवी भी देखी होगी. तो टार्जन कहाँ रहता था? जंगल में रहता था. हालांकि वो एक ह्यूमन बेबी था, लेकिन वो जंगल में पला बड़ा था तो उसको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी. वो वही लैंग्वेज बोलता था जो एनिमल्स बोला करते थे. So when Jane, the female protagonist, first tried to communicate with him, he could not understand her. तो एक बार वो किससे मिला? जेन से मिला, जो कहाँ घूमने गई थी? फॉरेस्ट में घूमने गई थी या वहाँ गलती से वो गुम हो गई थी. तो जब वो उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता. So she began to teach him. When he gave her the stone, she made a sad face, but when he gave her a flower, she made a happy face. तो धीरे धीरे उन्होंने बात करनी शुरू की और धीरे धीरे बात उन्होंने कैसे शुरू की? साइन लैंग्वेज के थ्रू. जब वो जो टार्जन था वो उसको कोई पत्थर देता था तो वो सैड फेस बनाती थी, और जब वो उसको फ्लावर देता था तो वो हैप्पी फेस बनाती थी. इससे उसे पता चला कि हाँ, क्या चीज़ देने से ये खुश होगी और क्या चीज़ देने से इसे दुख होगा. When he shouted, she did not like it, but when he laughed, she smiled as well. So, with a series of good and bad experiences, she succeeded in making him familiar with the acceptable social skills of normal humans, and he learned it like that. अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता, उनको नहीं पता होता क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ रहकर, स्कूल में टीचर्स के साथ रह करके वो धीरे धीरे सीखते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है. Artificial intelligence refers to the intelligence of machines. Artificial intelligence is the ability for a computer to think and learn. It is trying to make computers act like humans. It performs to reduce manual work. AI comes from the sets of instructions that humans write. These instructions are called programs. The final goal of AI is to create computers that can think as humans. तो इंटेलिजेंस से आप समझ गए ह्यूमंस के बारे में कहा गया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रेफर करता है मशीन्स की इंटेलिजेंस को. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है ये कंप्यूटर को
थिंक और उनको लर्न करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ये कंप्यूटर्स को हेल्प करती है ताकि वो ह्यूमंस की तरह ही एक्ट करें, उनकी तरह ही वो सोच समझ सकें। हालांकि इस स्टेज में वो अभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और एआई की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे एलेक्सा है, सीरी है, इनको आप कमांड देते हैं तो ये आपकी वॉइस को अंडरस्टैंड करती है, उन्हें समझती है और आपकी कमांड को ये फॉलो करती है। फेमस पर्सनालिटी जॉन मैकार्थी इज नोन एज द फादर ऑफ एआई। तो एआई के फादर माने जाते हैं कौन, जॉन मैकार्थी। तो बच्चों इनके बारे में आप याद रखना। सब्जेक्ट इंटीग्रेशन मैच द फॉलोइंग आफ्टर परफॉर्मिंग एडिशन एंड ज्वाइन द डॉट्स ऑल्सो। अब ये आपने अपने मैथ्स में भी किया होगा, मैथ्स की बुक में भी, जैसे कि हम लोग पिक्चर्स को ऐड करते हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं और फिर एक नंबर उनको टोटल करके लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इन पिक्चर को आपको ऐड करना है और यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं, उनसे उन्हें मैच करना है। Artificial intelligence devices, the devices or gadgets made by humans are used for various purposes. They make our work easy and fast. Let us now learn about few of them. तो यहाँ पे हमें बहुत सारे डिवाइसेस और गैजेट्स मिले हैं जो कि हमारे कामों को आसान करते हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला है AI टॉय। Zoomer Chimp. Zoomer Chimp is an AI robot with artificial intelligence. It stimulates the movements and behavior of a real chimpanzee. It recognizes faces, play games, and engage in conversation with children. तो जूमर चिम्प के बारे में आपने सुना होगा। ये एक एआई रोबोट है और ये चिंपांजी की तरह बिहेव करता है और साथ ही साथ फेसेस को रिकॉग्नाइज करता है और गेम्स भी खेलता है, साथ ही साथ ये बच्चों के साथ कन्वर्सेशन भी करता है। एबो is an artificial intelligence dog and it can do many things like a real dog. It barks like a dog, plays with toys, listen to our instruction and identifies various peoples. अब ये जो एबो है ये आर्टिफिशियल डॉग है, ठीक है, और ये बिल्कुल डॉग की तरह बार्क करता है, डॉग की तरह खेलता है टॉयज के साथ और इंस्ट्रक्शंस को भी सुनता है। साथ ही साथ जैसे जो रियल डॉग होता है वो अलग अलग लोगों की आवाज़ पहचानते, ये भी सेम ही करता है। Gululu. Gululu is an interactive water bottle and health tracker. Gululu helps kids to stay healthy and build good habits. अब सोचो, आपने सोचा था कभी कि ऐसी बॉटल भी आएगी जो किड्स को याद दिलाती रहेगी कि आपको अब पानी पीना है? तो इस तरह का एक बॉटल आया है जिसका नाम है गुलुलू। ये आपके हेल्थ ट्रैकर के रूप में काम करता है और आपको बताता है कि अब आपको क्या करना है, पानी पीना है। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्टेड होता है जो कि आपके मोबाइल में आपको बताता रहता है कि आपका पानी बॉटल में ख़त्म हो चुका है या आपको पानी पीना है, इस तरीके से। AI machines in factories. Artificially intelligent machines used in factories are capable of lifting, moving and packing objects just like human beings. अब पहले के टाइम पे क्या होता था, फैक्ट्रीज में ह्यूमन काम किया करते थे। जब लोग काम किया करते तो काम होता था लेकिन बहुत स्लो होता था। Artificial intelligent machines used in factories are capable of lifting, moving and packing objects just like human beings. पहले के ज़माने में फैक्ट्रीज में जब मशीन्स नहीं हुआ करती थी तो ह्यूमंस काम करते थे, तो काम होता था लेकिन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहता था। लेकिन अब आपने देखा होगा काफ़ी सारे फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें इस तरीके की मशीन्स आ गई हैं। ये मशीन जो है ये कार तक डिज़ाइन करती है, ना सिर्फ डिज़ाइन करती हैं, कार्स बनाने में भी हेल्प करती हैं। और बहुत ज़्यादा जो काम होता है जो ह्यूमंस बहुत टाइम लेकर के करते हैं, ये बिल्कुल मिनटों में उस काम को करके दे देती हैं। Simplified learning conduct a group discussion on the topic is AI boon for humans. तो आपको इस टॉपिक में एक ग्रुप डिस्कशन करना है। AI machines at homes. It helps in voice assistant like Alexa. अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था, Alexa जो है ये आपके कमांड को फॉलो करती है। आप अगर इसको बोलते हो कि ये वाला सॉन्ग चला दो तो ये आपके लिए सॉन्ग चलाती है। It helps in entertainment apps like Netflix. अब Netflix पे भी आप मूवी देखते हो, ठीक है। It helps in navigation and traveling like Google Map. Google Map जब भी आप कहीं जा रहे होते हो, आपको नहीं पता चलता कि आपको आगे से राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, तो आप क्या करते हो, Google Map ऑन कर लेते हो। It helps in self-driving vehicles. Now critical thinking. Name a voice assistant other than Alexa. अब आपको कोई दूसरा वॉइस असिस्टेंट बताना है जो एलेक्सा के जैसा ही काम करता है।
Tricky terms: intelligence, ability to learn from experience and deal with new situations. Artificial intelligence, ability for a computer to think and learn. तो इस चैप्टर में हमने AI के बारे में जाना. एक तो होती है इंटेलिजेंस जो कि हमारे ऊपर होती है, कि मतलब हम जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे किसी भी सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल करने के लिए हम सोचते हैं समझते हैं. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, ये एबिलिटी होती है कंप्यूटर के लिए जो उसको कंप्यूटर को या मशीन को सोचने या समझने में हेल्प करती है. So children, I hope you understood the chapter very well, and now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.